Hello everyone. Today I welcome you all to Balaji online classes. Today I am here to illustrate chapter number 1, Emergence of Democracy, a historical perspective of class 7th political science. The word democracy. Democracy word has been originated from Greek. It's a Greek word. And if we break this word, the word demos means people and kratos means government. Matlab people's government. It is said that democracy has been originated from the Greek city of Athens, and people here used to gather, especially the male citizens. Why? Because the women and the slaves and foreign nationals were excluded from this list, and the male members they gather at a place approx 40 times a year to participate in the process of lawmaking, and these people are called as active citizens. Now, if we go through the concept of modern democracy that has been traced back from Glorious Revolution in England in 1688. That was the after this revolution, the constitutional form of government was established in England, and the parliament became the supreme, and the power of the king was reduced. Britain is known as the first modern democracy country which adopted this form after the Civil War, and the power went in the hands of the parliament, which was divided into two houses. One was the House of Lords and second was the House of Commoners. House of Commoners was the elected body. And then later on, in 1838, a committee was founded which included 6 members of parliament and 6 members of working class, and they drew certain objectives in which the people, the men, especially the men, again I am repeating, women were excluded at that time, only the men above the age of 21 or at the age of 21, they got the right to vote. And also the concept of voting through secret ballot came into existence. Then if we talk about India, we achieved our independence on 15th August 1947, and here the constitution adopted the parliamentary democracy with representative form of government. Here in India, we have also received people above the age of 18 or who are at the age of 18, they have right to vote. Means जो लोग 18 साल के हैं या 18 साल से अबव हैं, उन्हें राइट टू वोट है, वो इलेक्शन के टाइम पे वोट अपना कास्ट कर सकते हैं और अपने जो भी उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको वो चूज करना चाहते हैं उसे वो वोट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्शन में क्या होता है? देयर आर वेरियस पार्टीज दैट कम्पीट विद ईच अदर. उसमें क्या होता है? वोटिंग होती है लोगों की, उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है, फिर रिजल्ट आता है. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन का, इसे कंट्रोल करता है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी और ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन जो है वो फेयरली और फ्रीली हो, कोई फोर्स इसमें ना अप्लाई हो, किसी को धमका के हम काम ना करें, राइट? ऑल्सो क्या होता है, कभी कभी इलेक्शन में एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, वो गवर्नमेंट बना लेती है, एंड इन सम टाइम्स व्हाट हैपेंस कि एक भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो क्या होता है, 3-4 पार्टीज दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट. जब 2-3 पार्टी साथ में आकर एक गवर्नमेंट अपनी बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन कम्स द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. एक इलेक्शन वो होते हैं जो हर 5 साल बाद होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज जनरल इलेक्शंस. देन एक इलेक्शंस होते हैं बाई इलेक्शंस. बाई इलेक्शंस आर कंडक्टेड व्हेन अ सीट इज वैकेंट due to in a constituency due to death of a candidate or resignation of a candidate due to any reason. Then the third type elections are the mid-term elections. They are conducted when a ruling government is dissolved. ये जो इलेक्शंस होते हैं, जब जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी कारण की वजह से डिसॉल्व कर दी जाती है, तो हमारे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. Then comes the political parties. There are 2 kinds of political parties.
national political party and regional political party. National political parties are those parties which has representatives in 4 or more states and has polled 4% of the total vote cast in the general elections. For example, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो हमारे यहाँ है हमारी कंट्री में, and also regional parties are those parties which operate in a specific area. That's why they are also called as local parties. जैसे कि हमारा अकाली दल हो गया, ठीक है, हमारा हरियाणा विकास पार्टी हो गई, and etc. Then there are different types of party systems. जैसे कि सिंगल पार्टी सिस्टम जो बेसिकली हमारा चाइना में होता है, जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी उसी के बीच में इलेक्शन होते हैं उसी में और उस वही फॉर्म करती है गवर्नमेंट, कोई सेकेंड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. देन कम्स द बाई पार्टी सिस्टम, जैसे कि यूएस में होता है. यूएसए में क्या होता है, एक पार्टी है डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन्स और ये आपस में कॉन्टेक्स्ट करती हैं और इन्हीं के बीच में इलेक्शन होता है. देन कम्स द मल्टी पार्टी सिस्टम विच इज प्रेवलेंट इन इंडिया. बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन में और फिर जो पार्टी मेजॉरिटी जिसको मिली होती है उसका लीडर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसका लीडर जो होता है बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आवर कंट्री. Then comes the opposition parties. Opposition parties are those parties which are not the part of the ruling government. एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है और एक वो पार्टीज होती हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट के पार्ट में नहीं होती, मतलब वो पार्टीज जो इलेक्शन में हार गई होती हैं वो अपोजिशन पार्टी बन जाती हैं और इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है बिकॉज ये जो भी एंटी एक्टिविटीज चल रही होती है गवर्नमेंट की, कोई भी ऐसा स्टेप होता है रूलिंग गवर्नमेंट का जो गलत होता है तो उसके अगेंस्ट ये जो है लोगों को अवेयर करती हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं पार्लियामेंट में. In this way, what they do, they maintain the spirit of the democracy. Then comes the different forms of democratic government. First is parliamentary, second is presidential. Parliamentary form of government में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है he is the real head. वो रियल हेड होता है, पार्लियामेंट होता है जिसमें लॉज बनते हैं एंड जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आंसरेबल होता है पार्लियामेंट का, वाइल जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है कंट्री का. And in presidential form of government that is practiced in America basically, उसमें क्या होता है, president is the real head of the nation and he is not answerable to the parliament. Then democratic government can also be of two types, that is unitary and federal. यूनिटरी में क्या होता है कि जो सेंटर होती है, जो सेंट्रल पार्टी होती है दैट इंजॉयज मोर पावर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं दैट आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वाइल फेडरल टाइप में क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में पावर्स डिवाइड किए जाते हैं और स्टेट जो है वो आंसरेबल नहीं होती है, किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती है सेंट्रल स्टेट के वर्क में. इंडिया ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम बट इट हैज अ यूनिटरी बेसिस. मतलब पावर्स तो डिवाइडेड है लेकिन यहाँ भी जो पावर्स है वो सेंट्रल के हाथ में ज्यादा है. देन कम्स द लास्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज इक्वालिटी. ऑफ कोर्स इन डेमोक्रेसी all the citizens are equal before law irrespective of their background, their religion, their caste, their culture, their creed, sex, race or anything else. Exactly. Second is freedom. Freedom वो पिलर है डेमोक्रेसी का जिसके थ्रू द citizens of a country got the right to express themselves. They have right to express their thoughts, they have right to conduct the movements, also they have right to practice their religion, their culture. Then third is decision making mechanism. क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, लोगों की गवर्नमेंट कही गई है ना, इट्स पीपल्स गवर्नमेंट. तो इसमें जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और जब वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स. देन कम्स द एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे डू नॉट हैव द राइट टू इम्पोज एनीथिंग ऑन देयर सिटीजन्स. वो कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकते हैं, इंस्टेड उन्हें जो भी करना होता है उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं. एंड ऑल्सो जो अपोजिशन पार्टी होती है इट प्ले ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल रोल क्योंकि ये जो भी जो भी गवर्नमेंट की हमारी एंटी एक्टिविटीज होती हैं उनको हाईलाइट करती है.
Then comes the topic popular participation. As we have discussed earlier, that popular participation